Assalamu alaikum everyone. Today's the topic of our lecture is the uses of tenses. First, let's talk about what is the word tense. So the word tense has been derived from the Latin word tempus, which means time. Tense का जो लफ्ज़ है it has been derived from Latin language के word से उसका मतलब क्या है time. Tense is that form of a verb which shows the time or the state of an action or event. Tense हमारे साथ verb का वो form है जो कि हमें किसी भी एक्शन या इवेंट के टाइम के बारे में बताता है कि आया वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है. So as a whole we do have three categories of time: present, past and future, and further these three categories has been divided into sub four categories. So we do have as a whole 12 tenses. The first one is simple present tense. Simple present tense is used to express a habitual action. Simple present tense को हम उन actions के लिए use करते हैं जो हमारी daily routine का हिस्सा हो, जो हमारे habits में हो. For example, I get up early in the morning. So you see कि it means कि this is an action कि getting up early in the morning, it is the part of my daily routine. The second is to express general truths. General truths mean जो कि universal truths हैं, ठीक है. Universal truths are the sort of facts के मतलब जो कि from the start till the end वो same है, जिसमें कोई changes नहीं होते. Like for example, the sun rises in the east. So you see it's a universal phenomena, it cannot be changed. So for that purpose we use simple present tense. To express a future event that is part of a fixed timetable or fixed program. अलॉन्ग विद इट हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को उन कामों के लिए भी यूज़ करते हैं जो कि हमारे साथ प्री प्लान्ड हो, लाइक फ्यूचर इवेंट हो लेकिन एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम का हिस्सा हो. इट हैज़ बीन ऑलरेडी प्लान्ड. फॉर एग्जांपल, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock. इट मीन्स कि मैच अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन 9 o'clock को शुरू होने वाला है, ठीक है. बट इट हैज़ ऑलरेडी बीन प्री प्लान्ड, सो फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. Along with it, it is also used to introduce quotations. Quotations को express करने के लिए भी हम simple present tense ही use करते हैं. For example, a thing of beauty is a joy forever. Second is present continuous tense. It is used for action that has been taking place on the very spot. ठीक है, जिस वक्त आप बात कर रहे हैं और इसी टाइम में वो काम जारी है. So for that purpose we use present continuous tense. For example, I am recording the lecture. Now you see कि on the spot ये action जारी है, recording of the lecture. So for that purpose we use present continuous tense. Along with it, it is used for an action that has already been arranged to take place in the near future. Near future में जो काम होने जा रहे हैं, for that purpose we also use present continuous tense. For example, my uncle is arriving tomorrow. नाउ यू सी कि मतलब ये एक्शन कल को होने वाला है, आज नहीं, अभी नहीं. बट द फैक्ट इज़ इट इज़ द पार्ट ऑफ द फ्यूचर, ठीक है. लेकिन फॉर दैट पर्पज़ आल्सो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. देन हियर कम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. It is used to indicate the completed activities in the immediate past. Means a little while जो एक काम कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, बस एक लम्हा पहले एक काम कंप्लीट हुआ हो, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. और फॉर दैट पर्पज़ हम हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है जस्ट भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ आई से आई जस्ट हैव कंप्लीटेड माय वर्क, ठीक है, और ही हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हिज टास्क. नाउ यू सी वो हियर कि मैंने हिज के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ जस्ट यूज़ किया. सो फॉर दैट पर्पज़ विच शोज़ के हाँ इमीडिएट पास्ट में ही ये काम कंप्लीट हुआ है. To express past actions whose time is not given or not defined. हम पास्ट के उन कामों के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं जिसका टाइम हमें मालूम ना हो, कि मतलब कब जो है डेफिनेटली या मतलब स्पेसिफिकली हम उसके टाइम के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो काम कंप्लीट हुई हो, पास्ट का हिस्सा हो. फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जांपल इफ़ आई से आई हैव read Gulliver's Travel. गलिवर्स ट्रेवल इज़ द नेम ऑफ द बुक, ठीक है. सो आई हैव रीड मीन्स के मतलब मैंने रीड किया है, बट द फैक्ट इज़ के मतलब टाइम पीरियड इज़ नॉट गिवन. और ही हैज़ बॉट द बुक, ठीक है, ही हैज़ बॉट द बुक. अब पता नहीं है कब लिया है, लेकिन द फैक्ट इज़ के इट इज़ द एक्शन ऑफ द पास्ट. टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट विच वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ. अलॉन्ग विद इट हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उन कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं
उस सिचुएशन में जब हमारा ज़्यादातर कंसर्न उसके रिज़ल्ट, उसके इफ़ेक्ट, उसके इन्फ्लुएंस के साथ हो जो कि प्रेजेंट में हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई से आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, लाइक अपेरेंटली तो मतलब मैं फिनिशिंग ऑफ द वर्क के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मतलब ये हो सकता है कि मतलब द फैक्ट इज़ कि नाउ आई एम फ्री, ठीक है, अभी मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, आई एम फ्री। सो इसका जो इफ़ेक्ट है दैट बीइंग फ्री एंड बीइंग रिलैक्स इन द प्रेजेंट सिचुएशन, हमारा ज़्यादा कंसर्न उसके साथ होता है। Sorry. Then here comes simple past tense. It is used to indicate an action completed in the past. It often occurs with adverbs of past time. Simple past tense को हम उन कामों के लिए यूज़ करते हैं जो कि पास्ट में कंप्लीट हुए हों, एंड ऑफन हम इसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम भी यूज़ करते हैं कि मतलब कब जो है वो काम कंप्लीट हुए हों। फॉर एग्जांपल, शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, शी लिफ्ट अब हमारे साथ मतलब द फैक्ट इज़ कि मतलब ये काम कंप्लीट हुआ है एंड लास्ट ईयर, सो लास्ट ईयर हमारे साथ क्या है, इट इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि पास्ट टाइम के बारे में बात कर रहा है। along with it is also used without an adverb of time। ज़रूरी नहीं कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो इसके साथ हों, बट द फैक्ट इज़ कि मैनी टाइम्स हमें कॉन्टेक्स्ट से मतलब उस सिचुएशन से हमें पता लग जाता है कि मतलब हाँ ये इसी टाइम के बारे में बात हो रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आई डिडंट स्लीप वेल, आई डिड नॉट स्लीप वेल। सो यहाँ पर आप देखें कि स्लीपिंग वेल, अब मे बी ऑन इन द मॉर्निंग टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। सो ये बात अंडरस्टूड है कि आप लास्ट नाइट के बारे में ही बात कर रही हैं। द सिंपल पास्ट इज यूज फॉर पास्ट हैबिट्स, कि पास्ट में आपके जो हैबिट्स थी उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे। सो यू सी के मतलब ही स्टडीड मीन्स इट वॉज हिज रूटीन, इट वॉज हिज हैबिट, लेकिन अभी नहीं है। Then here comes the sex tense, that is past continuous tense. It is used to denote an action going on at some point in the past. The time of the action may or may not be indicated. आप पास्ट के एक टाइम के बारे में बात कर रहे हो और उसी टाइम जो काम जारी था, फॉर दैट पर्पज़ वी कैन यूज़ पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। और टाइम मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल, वी वर वॉचिंग टीवी, ठीक है, आप स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हो, या यू कैन से कि एट 9 o'clock वी वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, वी वर प्लेइंग क्रिकेट एट 9 o'clock। नाउ यू सी के मतलब 9 o'clock पास्ट का एक टाइम था, ठीक है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कि उसी टाइम आप क्या कर रहे थे। The past continuous tense and simple past are used together when a new action happened in the middle of a longer action, and the simple past tense is used for the new action. The light went out while I was reading. पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को हम एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक काम पहले से जारी है और उसी जो हमारे साथ लॉन्गर एक्शन है जो कि पहले से जारी है, उसी के दरमियान एक दूसरा काम हो जाए, ठीक है, एक दूसरा एक्शन जो है इट टेक्स प्लेस, सो फॉर दैट पर्पज़ वी कैन यूज़ देम टुगेदर। और सिंपल पास्ट टेंस को हम उस काम के लिए यूज़ करते हैं जो कि इन द मिडल ऑफ द लॉन्गर एक्शन हो जाए। जो काम जारी था उसके लिए हम पास्ट कॉन्टीन्यूस यूज़ करेंगे, एंड जो इन द मिडल हो जाए उसके लिए हम सिंपल पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग। नाउ यू सी वो हेयर, आई वॉज रीडिंग, ये एक लॉन्गर एक्शन था जो जारी था, ठीक है, इट वॉज इन प्रोसेस। इन द मिडल क्या हुआ, द लाइट वेंट आउट। सो द लाइट वेंट आउट ये हमारे साथ सिंपल पास्ट टेंस है, while I was reading past continuous tense है। Then here comes the seventh tense, that is past perfect tense. It is used to describe an action completed before a certain moment in the past. It is used to make clear that one event happened after another in the past. It doesn't matter which event is mentioned first, the tense makes it clear which one happened first. पास्ट में जो काम एक सर्टन मोमेंट पर एक काम कंप्लीट हुआ हो, सो फॉर दैट पर्पज़ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ आल्सो यूज टू मेक क्लियर दैट वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट, कि एक इवेंट
हुआ था पास्ट में, लेकिन उससे पहले एक दूसरा इवेंट हुआ है, ठीक है। मतलब दोनों इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसके बारे में बात करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड। I had saved my document. You see, it is one action. I had saved my document. The second is before the computer crash. Crashing of the computer हमारे साथ दूसरा एक्शन है, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारे साथ जो टू एक्शंस हैं, अब हमें किस तरह से पता लगेगा कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है। सो ये आपको उस कॉन्टेक्स्ट से ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। लाइक सेविंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पहले हुआ था, जैसे ही उसने सेविंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कंप्लीट की, आफ्टर दैट क्या हुआ, क्रैशिंग ऑफ द कंप्यूटर हैपेंड। सो इसी ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि सेविंग पहले हुई थी, जबकि आफ्टर इट क्रैशिंग ऑफ द कंप्यूटर। Then here come past perfect continuous tense. It is used for an action that began before a certain point in the past and is continued up to a time in the past. ये हम उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि एक पास्ट में जो है एक सर्टन पॉइंट पर वो शुरू हुई थी, ठीक है। एंड पास्ट के एक दूसरा पीरियड है जहाँ तक वो जारी थी, ठीक है। पास्ट के टाइम की ही में बात हो रही है। लाइक पास्ट में ही वो एक काम जो है एक पॉइंट पर शुरू हुआ था और दूसरे पॉइंट पर भी वो जारी था। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 5 years when I got the promotion. I had been working in the company for 5 years. एक टाइम पीरियड है, ठीक है। एंड हैड बीन वर्किंग, ठीक है, ये एक एक्शन है। When I got promotion. Now you see कि वर्किंग इन द कंपनी वो जारी था 5 years तक, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट एक्शन हैपन when she got promotion. सो you see कि एक काम जो जारी था पास्ट में टिल द प्रमोशन। सो ये एक काम जो जारी था 5 years, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे साथ क्या था, दैट इज़ आई गॉट दी प्रमोशन। सो ये दोनों काम जो है ये कहाँ के हैं, पास्ट के हैं। देन हियर कम्स सिंपल फ्यूचर टेंस. इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल. इट एक्सप्रेसेस द फ्यूचर एज फैक्ट. ये उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इट हैज़ टू हैपन वेदर वांटिंगली और अनवांटिंगली, मतलब हम चाहे या ना चाहे लेकिन उस काम को करना होता है। एंड ये फ्यूचर को एज अ फैक्ट एक्सप्रेस करते हैं कि ये काम जो है ये फैक्ट है, इट हैज़ टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल, सारा विल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे. नाउ द टाइम इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। टाइम पर तो हमारा कंट्रोल, हम चाहे या ना चाहे, लेकिन एज जो है वो तो टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा होता है। सो विल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, यू सी के मतलब उसका जो एज है वो 20 तक हो जाएगा नेक्स्ट सैटरडे तक। सो हालांकि फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, बट स्टिल एट एक्सप्रेस फ्यूचर इज़ फैक्ट. Second is, we use it to talk about what we think or believe will happen in the future. हम अपनी बिलीफ को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए कि हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या ख्याल है, उसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, हालांकि अभी जीता नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक. थर्ड इज, दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब आप बात कर रहे हो एंड एट दैट वेरी मोमेंट आप एक डिसीजन ले लेते हो, सो फॉर दैट पर्पज वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग, आई विल टेक एन अम्ब्रेला. इट इज़ रेनिंग, ठीक है, आप बात कर रहे हैं रेन के बारे में, एंड देन यू डिसाइड कि येस यू विल टेक एन अम्ब्रेला. सो यू सी के एट द टाइम ऑफ टॉकिंग आपने जो डिसीजन लिया, फॉर दैट पर्पज वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस. देन हियर कम future continuous tense. It is used to talk about actions which will be in progress at a time in the future. जब आप उन actions के बारे में बात कर रहे हो जो कि एक टाइम है फ्यूचर का, उस वक्त तक जो है वो जारी होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से आई विल बी वॉचिंग द टेनिस ऑन TV, सॉरी, आई विल बी वॉचिंग द टेनिस ऑन TV. नाउ यू सी वो हियर कि
फ्यूचर का एक इवेंट है कि आप जो हैं इस वक्त ये काम कर रहे होंगे. आई बी गोइंग टू पिशावर. ठीक है, सो यू सी के आई बी गोइंग टू पिशावर एट 9 AM. नाउ यू सी वो हियर कि एट 9 AM जो है ये काम जारी होगा. सो फॉर दैट पर्पज वी यूज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. We use be2 plus base form of the verb to talk about official plans and arrangements. हमारे साथ जो ऑफिशियल प्लान्स हैं और अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, उस मकसद के लिए हम बी जो है, बी का जो जितनी भी वर्ब्स हैं, बी हमारे साथ बेसिकली बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है किसका, SMR जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है बी के. देन वॉज वर जो कि बी के सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. एंड देन वी हैव बिन जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है बी का. एंड बीइंग बी का जो है ING फॉर्म ऑफ द वर्ब है. सो B2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज़ करते हैं किस मकसद के लिए, फॉर द पर्पज़ कि हमारी जो ऑफिशियल प्लान्स हैं और अरेंजमेंट्स हैं उसके लिए. ठीक है, ये भी हमारे साथ लाइक अ सॉर्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट है. फॉर एग्जांपल, द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ. नाउ इस सेंटेंस को आप देखें, इस जो है ये बी का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. ठीक है, बी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है जबकि इज़ उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. उसके साथ हमने टू पुट किया. एंड विजिट जो है दैट इज़ आल्सो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. फ्यूचर का एक प्लान है, ऑफिशियल प्लान है, उस मकसद के लिए हमने ये स्ट्रक्चर जो है यूज़ किया है. देन हियर कम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम. जब आप एक एक्शन के बारे में बात कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि मतलब नेक्स्ट वीक तक हमारा ये काम पूरा हो चुका होगा. नाउ यू सी आई शैल हैव कंप्लीटेड द कोर्स. आई शैल हैव कंप्लीटेड द कोर्स के मतलब एक टाइम पीरियड है, एक सर्टन फ्यूचर टाइम है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि मतलब मेरा ये काम जो है पूरा हो चुका होगा. सो फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years. बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. ठीक है, यू सी के सर्टन फ्यूचर टाइम है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि आपका यहाँ पर जो है पूरी जो 5 years है वो कंप्लीट हो चुके होंगे. And then here comes the last tense, that is future perfect continuous tense. It is used for the actions which will be in progress over a period of time that will end on the future. Again ये हमारे साथ उस एक्शंस के लिए यूज़ होते हैं कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो प्रोग्रेस होंगे एंड वो फ्यूचर में ही ख़त्म होंगे. ठीक है, एक फ्यूचर आप एक एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई. अब नेक्स्ट जुलाई जो है उस तक 20 years कंप्लीट हो चुके होंगे. ठीक है, अब दिस इज़ अ प्रोसेस के इन गोइंग ऑन और फ्यूचर में ही एक टाइम है जब तक जहाँ तक वो कंप्लीट हो चुके होंगे. सो आई विल हैव बीन टीचिंग. टीचिंग अब क्या है, इट इज़ इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर. ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम है वहाँ तक ये कंप्लीट हो चुके होंगे एंड दैट इज़ के नेक्स्ट जुलाई. ओके, सो हियर कम्स द कंक्लूजन ऑफ टुडेज़ लेक्चर कि टेंस हमारे साथ बेसिकली किस चीज़ के बारे में बताता है, ये किसी भी एक्शन या इवेंट के टाइम के बारे में बताता है कि इज़ इट हैपन इन द पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट. थैंक यू. कीप ग्रोइंग एंड शाइनिंग.